Hello everyone, welcome to Mindspan Education. In last video, we saw definition of function of single variable. This is a series of calculation optimization as part of our full day Get DA course. So in this video, what we are going to see, let's see first recap of the last lecture, what we saw. So we saw what function means, how it is related to a relation, and when we can say a particular type of relation is a function or not. All these things we already discussed in last video. Just for the recap, a function is something when we say, let me take a marker. Okay, a function is a relation which uniquely defines output based on inputs. So for each input, there is exactly one output. Then we say that magic is function. I describe it like some magic is happening in this box and input is coming and some output is getting produced. If input is mapped in such a way that each input gets exactly one output mapped, then we say that this magic is function. Otherwise, it may be relation but not function. Okay. So, uh, what else we saw? Let's see. We also gave some example of functions like see this parabolic function. Here we saw that for every input we were getting different output. So it was a function. But this circle, equation of circle wasn't a function because for both, if you take some value like x equal to 0, you will get multiple value of y. Y is the output and x is the input. So for x equal to 0 input, uh, if we see this in that box like thing, then if this is the box and this is input, then for 0 we will get two outputs, 1 and -1. So that definition that exact each input should get mapped to exactly one output is not properly followed here. So this is not a function. This is a relation. It is giving a relation between these inputs and outputs, but it is not function. Okay. And how we represent functions. Different ways we can represent function, like either we give all the input and output list out in the form of set, ordered pair set, and we can say that this is function. This is also defined in this fashion also, these domain and codomains. And what is codomain, what is range, we have already explained in detail in the last video. Also, functions are defined in this fashion also, piecewise manner, where functions formula or definition gets changed based on the domain interval. Okay, suppose for this function, it takes definition as x square, but for when x is odd, otherwise when x is even, it takes definition as x plus 1. So this is called piecewise definition of function. We are defining function in different pieces. Okay, and we also saw the definition of the various type of function based on its mapping, how it is mapping the input to output. Based on that nature, we saw functions are like one to one, many to one, and why these mappings like one to many and many to many are not function. We also saw these things in detail. In today's lecture, what we are going to see is, also we saw this concept, if a function has to be one to one, then it must be either monotonically increasing or monotonically decreasing. It cannot change its path from increasing to decreasing to satisfy the condition of one to one. Okay, otherwise it will give two different y's for same y for two different axes. So
function to be one to one, it must be monotonically increasing और monotonically decreasing. किसी भी फंक्शन को वन टू वन होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज वो मेनी टू वन हो जाएगा, वन टू वन नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ जहाँ भी बढ़ते बढ़ते वापस से घटने वाला एरिया में जाएगा और टर्न होगा, तो दो डिफरेंट एक्स के लिए, जैसे ये बढ़ रहा है ये वापस से घटने लगेगा, तो दो डिफरेंट एरिया में एक्स के लिए सेम वाई मिल जाएगा। तो एक दो इनपुट के लिए यदि एक ही आउटपुट आ रहा है तो फिर वो वन टू वन नहीं रहेगा, वो मेनी टू वन हो गया, मेनी इनपुट्स आर गेटिंग मैप टू वन। ओके, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन। जैसे अभी तक हमने इंट्यूटिवली देखा कि कैसे डिफाइन करते किसी फंक्शन को, इन इंट्यूटिव मैनर, मतलब देख के पता लगाना या उसके बारे में अंदाजा लगा के पता लगाना कि वन टू वन है कि नहीं, मैनी टू वन है कि नहीं, in that way. But always you cannot intuitively analyze a function based on its nature. Sometimes functions are complicated and domain are very vast, काफी बड़ा होता है, तो हम सारे डोमेन पॉइंट्स को चेक भी नहीं कर सकते और देख के पता नहीं लगा सकते, ग्राफ भी नहीं रहता फंक्शन का। तो उस केसेस में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं किसी फंक्शन को कि वन टू वन है कि नहीं, मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं प्रूफ वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट वन टू वन का प्रूफ देखेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ कि कैसे करते हैं। तो देखें, पहले मैथमेटिकली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वन टू वन फंक्शन को। देखें, हम वन टू वन से का मीनिंग अब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हर इनपुट जो है वो किसी एक ही आउटपुट से लिंक्ड होना चाहिए और किसी भी दो इनपुट के लिए सिमिलर आउटपुट नहीं निकलना चाहिए। ऐसा यदि हो रहा है तो इसका मतलब दोनों इनपुट सेम ही हो तभी, राइट। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम बोलेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होगा, तभी होगा जब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, भले ही छोटा है। ये कहता है कि ये आउटपुट्स हैं, आउटपुट वन बराबर हो गया आउटपुट टू के, इसका मतलब इनपुट वन बराबर होगा इनपुट टू के। मतलब किसी भी दो इनपुट के लिए ये बराबर नहीं हो सकता है, दो डिफरेंट इनपुट के लिए ये बराबर नहीं हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। उल्टा कॉन्ट्राडिक्शन करके ये कहना चाह रहा है कि जब भी कभी ऐसा हुआ, जब भी कभी ऐसा हुआ कि दो दो आउटपुट जो है दो डिफरेंट पॉइंट पे आउटपुट बराबर हुए, तो वो दोनों डिफरेंट पॉइंट एक्चुअली सेम ही होंगे, मतलब सेम ही इनपुट के लिए रहा होगा, अदरवाइज वो बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कहना चाहता है कोई फंक्शन दो इनपुट वैल्यूज के लिए यदि बराबर हो रहा है, इक्वल वैल्यूज आउटपुट दे रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा कि वो इनपुट्स सेम ही थे। अलग अलग दो अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा है ये, राइट। तो इसी बेसिस को पकड़ के हम क्या करते हैं, फंक्शन को वन टू वन है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे मतलब इसको यूज करके कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका होगा यदि आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे हम यदि कोई फंक्शन ले, एग्जाम्पल आपको देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो बेस्ट है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सपोज, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये है मेरा फंक्शन। तो यदि मैं वन और माइनस वन मेरे इनपुट्स है, तो दोनों के लिए आउटपुट क्या आएगा, वन ही आएगा। तो वन के लिए भी वन आ रहा है और माइनस वन के लिए भी वन आ गया, तो ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि टू डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया। तो वन टू वन नहीं होगा ये, राइट, वन टू वन ये नहीं होगा। तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो सही है, अदरवाइज
हम काउंटर एग्जांपल उतना ढूंढ नहीं सकते, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली किसी फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। तो हम करते क्या है, हम इसी जो ऊपर में ये डेफिनेशन, इसको एक बोल देते हैं, इसको हमेशा बेस बना के चलते हैं। हम मानते हैं लेट x1 एंड, इसी एग्जांपल के लिए प्रूव कर रहे हैं हम। ओके, x1 x2 आर टू डिस्टिंक्ट नंबर इन डोमेन। टू डिस्टिंक्ट इनपुट्स ऑफ f। ओके, अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जब आउटपुट सेम हो जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, क्या होगा इक्वल टू, यदि दोनों इक्वल टू हो गया तो क्या होगा फंक्शन का बिहेवियर। तो देखिए, तो फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो इसको स्क्वायर कर देगा और इसको भी स्क्वायर कर देगा। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। यदि फंक्शन का आउटपुट बराबर होना रहा होगा तो ये x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होना पड़ेगा। यही फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए इसको यदि हम और सॉल्व करें तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 इस साइड ले आए इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर x1 माइनस x2, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखो यदि ये इनमें से दोनों ही 0 हो सकता है, कोई भी 0 होगा तो इसको 0 बना देगा। इफ दिस पार्ट becomes 0, x1 minus x2, x1 minus x2, this part becomes 0, then what we will get, x1 equal to x2, right? This is fine. This actually supports our hypothesis of that fx is 1 to 1। ओके, सपोज हम ये मान के चल रहे हैं शुरू में कि एफ एक्स 1 to 1 है और उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि ये पार्ट 0 हुआ तो ये देगा कि x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 होगा और x1 will become x2. So fx1, when we took this, that output equal to 0, outputs are equal, means fx1 equal to fx2, it led us to inputs are equal, which means similar definition of one-to-one function, where we were explaining that whenever output becomes equal, this imply inputs are equal. Okay, means no similar output for two different inputs. Okay, now when this part becomes 0, तब देखते हैं क्या होता है when this part becomes 0, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है। तो x1 प्लस x2 ये भी 0 हो सकता है, राइट। जब ये 0 होगा तो देखिए क्या होगा, x1 विल बिकम माइनस x2। मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में भी वी आर गोइंग टू गेट similar outputs. So fx1 equal to fx2 can give this also, means fx when x1 equal to minus x2, when two inputs are just reversed by their sign, then also we will get similar outputs. तो इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमारा काउंटर एग्जांपल क्या हो सकता है। कोई भी x1 आप ले लीजिए, 4 ले लीजिए और x2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसके लिए fx1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है। और fx2 क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, फॉर 4 and -4 for both, we are getting 16 output. So not
1 to 1, राइट। तो हमने जब भी कभी कोई काउंटर एग्जाम्पल खोज लिया या इसको डिस्प्रूव करने का कोई भी एक पुख्ता तरीका खोज लिया, तो हम समझ जाएंगे कि ये 1 to 1 नहीं है। क्योंकि 1 to 1 होने के लिए इसको अपने डोमेन में सारे पॉइंट पे सख्त रहना पड़ेगा, सारे पॉइंट पे इसको हमेशा ये फॉलो करना पड़ेगा कि जब भी ये फंक्शन इक्वल होगा तब भी इनपुट, जब भी बराबर होगा तभी आउटपुट बराबर आएगा। सारे इसके डोमेन के सारे पॉइंट पे होना पड़ेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट हम खोज पाए जिसमें ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब 1 to 1 नहीं है। तो हमें बस एक ही काउंटर एग्जाम्पल खोजने की जरूरत होता है या एक ही तरीका ढूंढने का जरूरत होता है इसको डिस्प्रूव करने के लिए। तो जब भी हम देखिए क्या किए, लेके चले कि Fx1 बराबर Fx2 है, ऐसा मान के चले। अब वो हमको कहाँ तक पहुंचा दिया, एफ एक्स वन इक्वल टू -x2 तक पहुंचा दिया। तो इसमें ये दोनों बराबर नहीं है, इनपुट बराबर नहीं है, साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं भी हो सकते हैं, और उससे भी हमें बराबर आउटपुट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है। तो दो डिफरेंट वैल्यू को भी ये सेम आउटपुट पे मैप कर सकता है। तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है। तो इसमें कोर आपको क्या समझना है कि कोई भी फंक्शन को जब हमको प्रूव करना होता है कि 1 to 1 है कि नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि चलो फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है। और मान ऐसा मान के चलते हैं नहीं है, सपोज, ठीक है, कोई एक चीज मान के चलते हैं और देखते हैं वो किसी काउंटर एग्जाम्पल तक तो हमें नहीं पहुंचा रहा है। तो मान के चले कि दो डिफरेंट वैल्यू x1 और x2 है, सपोज। ये बोलना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यू ही है, ये हमें आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो ऐसा हम शुरू में लेके चलते हैं कि Fx1 इक्वल टू Fx2 है, और इसको सॉल्व करके हम इसके इनपुट तक पहुंचते हैं और उससे पता लगाते हैं कि क्या ये बराबर था, तो उस किस चीज तक हमें पहुंचा दिया ये, कि x1 इक्वल टू x2 तक यदि पहुंचा दिया तो इसका मतलब ये तभी बराबर होगा जब इनपुट भी बराबर होगा, तो मतलब 1 to 1 है। और किसी भी केस में ये हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई और भी ऐसे केसेस जनरेट हो जाए जिससे हम ये कह पा रहे हैं कि x1 x2 नहीं भी बराबर होगा तो भी ये बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब दो डिफरेंट इनपुट के लिए ये सेम आउटपुट दे दिया, इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं रह गया, राइट। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं बेसिकली काउंटर एग्जाम्पल, या इसको आप कह सकते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कि जो हम लेके चले थे और उसको उल्टा हमें मिल रहा है, तो हाइपोथेसिस कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो हम शुरू में मान के चल रहे थे। तो इस हिसाब से ये 1 to 1 नहीं रहा। ओके, इस तरह से हम प्रूव करते हैं। आपको एग्जांपल देते हैं एक और, उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या था, ये तो 1 to 1 नहीं था, कोई 1 to 1 है ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, किस तरह से प्रूव कर पाएंगे कि ये 1 to 1 है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ और भी बेटर। आप ये ले लो Fx इक्वल टू x3, ये भी एक सिंपल सा फंक्शन है, और आप इनका ग्राफ देखोगे इन सब फंक्शन का, तो ये साफ साफ 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन हम ग्राफ से, अभी ग्राफ हमेशा हर फंक्शन का ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। तो आप देखो कैसे करते हैं। उसी तरीके से लेट x1 x2 ए बी, कुछ भी आप इनपुट ले सकते हो, ए बी आर टू इनपुट ऑफ एफ इन इट्स डोमेन। ओके, ये लेके चलते हैं कि ये भी, और डोमेन रेंज क्या है, फंक्शन का फुल डेफिनेशन रहेगा, तो यहाँ दिया हुआ रहेगा, ये R to R है। फुल डेफिनेशन इस तरह से रहेगा फंक्शन का, कि फंक्शन का डेफिनेशन दिया है और उसका डोमेन और रेंज भी, को डोमेन भी दिया हुआ है। तो हमारा डोमेन क्या है, R है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डोमेन यहाँ पे हमारा R है। ओके, अब देखो आप, कंसीडर कंसीडर क्या कंसीडर करके चलते हैं, Fx1 एफ है हमारा इनपुट, ए और बी है। आप इनपुट का वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, एफ इक्वल टू एफ बी, ये कंसीडर करके चलते हैं शुरू में।
और देखते हैं ये हमें कहाँ पहुंचाता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, राइट। ये भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ए क्यू, यदि इधर ले आए बी को तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर और क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला मैथ में हम एक्सपेंड कर दें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी वही उसी टाइप के मोड पे खड़ा हो गए हम लोग वापस से। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, राइट। तो देखते हैं यदि ये 0 हुआ तो क्या देगा हमें, ये 0 हुआ तो देगा ए इक्वल टू बी। ओके, तो ए इक्वल टू बी देगा, मतलब एफ ए। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आप देखो इसका मीनिंग हो जाएगा एफ ए इक्वल टू एफ बी, इंप्लाई किया हमको क्या कि ए इक्वल टू बी है। ये साफ साफ मतलब जो अभी डेफिनेशन हम मैथमेटिकल देखें, what we saw for one to one function, it exactly matches that, means it is supporting our hypothesis that fx is one to one function। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट को भी हम लेके चलेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, यदि यहाँ लिखे पार्ट 2, इसमें क्या है देखो, ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। यदि ये मैं प्रूव कर पाऊँ कि ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो केवल एक ही पार्ट इसका 0 हो सकता है, जो कि ये ए माइनस बी है। तो हम सिर्फ इसी निष्कर्ष पे निकल पहुंच पाएंगे। यदि हम एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चले तो हम केवल यही प्रूफ कर पाएंगे कि ए इक्वल टू बी है। तो इसको देखो अब कैसे, ये ग्रेटर देन 0 ये कैसे होगा, तो अब देखो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इनफैक्ट उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 2ab। ओके, तो 2 एक्स्ट्रा लगा दिए तो इसको b/2 बोल देते हैं, ताकि ये ab ही बना रहे। अब प्लस b/2 है दूसरा टर्म, तो b/2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा b/2 का स्क्वायर जोड़ दिए तो एक बार b/2 घटाना भी पड़ेगा, ताकि ये कट गया तो वापस से ये ए बी ही बना रहेगा। और बी स्क्वायर अलग से था यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, इसी चीज को लेके चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर, इतना जो टर्म है इसको लिख सकते हैं ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो है। ऊपर वाला टर्म हमने कैसे लिखा, वो आप देख लो, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस माइनस एक्स्ट्रा जो भी आया उसको करके उसको वापस से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रहे यही चीज, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग हो, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर दिए और बच गया क्या एक्स्ट्रा, एक ये बच गया, एक ये बच गया। तो आप देखो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, तो ये बच जाएगा प्लस 3b² बाय 4, ये बच गया। तो ये चीज देखो, ये तो होल स्क्वायर है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा और या तो 0 से बड़ा होगा, राइट। कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और ये भी स्क्वायर है, बाकी 3/4 है, स्क्वायर है, तो ये भी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा, राइट। 0 कब होगा, जब दोनों ही 0 हो जाए। दोनों 0 नहीं है, क्योंकि एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकता, ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये मान के चलें कि डिस्टिंक्ट इनपुट है, ठीक है। 2 इनपुट्स यहाँ लिख देते हैं, चलो डिस्टिंक्ट इनपुट्स, ओके। 2 डिस्टिंक्ट इनपुट, सेम इनपुट लेके चलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम तो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं दो डिफरेंट इनपुट के लिए क्या बिहेवियर हो। तो ये चीज एक 0 हो भी गया तो दूसरे भी 0 नहीं हो सकता, दूसरा कुछ ना कुछ अलग चीज होना पड़ेगा। तो अपने आप ही दोनों जोड़ के 0 से बड़ा हो जाएगा। मान लिया b 0 हो गया तो इसको कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, तो दोनों मिलके कभी 0 नहीं होगा, राइट।
तो फिर इससे क्या हम किस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं? अब देखो, ये दोनों मिलके कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो से हमेशा बड़ा ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ से हम चले थे उसको फिर से एनालाइज करते हैं। ये वाला पार्ट तो हमेशा जीरो से बड़ा हो रहा है। अब देखो, ये वाला पार्ट तो हमेशा जीरो से बड़ा हो रहा है, तो केवल ये जो पार्ट है सिर्फ यही जीरो हो सकता है, राइट? तो और ये पार्ट जब भी जीरो हो रहा है तो ये क्या दे रहा है? ए इक्वल टू बी दे रहा है, और जो कि अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पहुंच रहा है कि वेन एवर एफ ए इक्वल टू एफ ई, जब भी आउटपुट बराबर हैं तब वो ये हमें बराबर ही इनपुट्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब सेम इनपुट के लिए ही सिर्फ सेम आउटपुट निकलेगा। कोई भी डिफरेंट इनपुट के लिए कभी भी सेम आउटपुट नहीं आएगा, और उसको किसी भी तरह से हम इस बात को गलत झूठा साबित नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये वन टू वन फंक्शन है, राइट? तो आप समझे, कोर समझने की कोशिश करो कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को वन टू वन प्रूव करते हैं, या वो वन टू वन नहीं है ये डिस्प्रूव करते हैं। समझ गए? तो ये दो एग्जांपल मैंने दिया ताकि एक उनमें से वन टू वन था और एक नहीं था, राइट? ये स्क्वायर्ड फंक्शन जो था वो वन टू वन नहीं था, और ये क्यूबिक फंक्शन जो था ये वन टू वन था। तो इससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है ये प्रूव या डिस्प्रूव मैथमेटिकली करने का। बाकी और भी आप एग्जांपल ले सकते हो और इसको प्रैक्टिस करने के लिए, और उसमें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर सकते हो। आपको ओवरऑल करना क्या है? आउटपुट को बराबर लेके चलना है और उससे इनपुट में रिलेशन पता करने की कोशिश करना है। यदि आप इस इफ यू आर रीचिंग at a point where you are not able to prove that for two different inputs we are getting same output, then that function will be one to one function. Okay, अब तो यहाँ तक आई होप ये क्लियर है आप लोगों को कि वन टू वन और मेन टू वन को मैथमेटिकली या प्रॉपर फार्मूला के तरीके से कैसे प्रूव करते हैं, राइट? और भी क्लियर हो गया होगा अब एग्जांपल से कि वन टू वन फंक्शन कैसा होता है, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू, और इसका उल्टा जो होता है इनटू होता है। ऐसे नहीं लिख सकते इसको, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सरजेक्टिव। ओके, इसका जो नहीं होते हैं इसका ऑपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ओके, इनटू फंक्शन जो कि नॉट ऑन टू है। ओके, अब देखिए इन ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और यहाँ पे एक फंक्शन का डेफिनेशन होता है। सपोज मान लो 2x+3 है या कुछ भी है, राइट? या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कुछ भी ऐसा है मान लिया। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक फार्मूला होता है फंक्शन का और एक उसका डोमेन रेंज का सेट होता है। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। तो ये बी जो है, इसको लास्ट क्लास में मैंने बताया, ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन, राइट? ये कोडोमेन जो है, इसको कोडोमेन क्यों बोलते हैं, इसको आउटपुट क्यों नहीं सीधे बोल देते हैं या रेंज क्यों नहीं बोल देते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये एक सुपर सेट होता है जो कि आइडिया देता है कि जब भी आउटपुट निकलेगा इस फंक्शन का, वो इसी बी वाले सेट का पार्ट होगा, इसी में कहीं से कहीं ना कहीं इसी से इनपुट आउटपुट आएगा। ठीक है, और ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे आउटपुट जो है वो बी के इक्वल हो गए, इससे कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब एग्जांपल देता हूँ ऐसा कब कब हो सकता है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा। जैसे पहला एग्जांपल देता हूँ, आप मान लो एक फंक्शन है जो कि आर से आर तक जा रहा है, इनपुट डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है, और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो डिसाइड करेगा ये किस टाइप का फंक्शन है। सपोज ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है? यदि हम नॉर्मल ग्राफ से इसको देखने की कोशिश करें तो ये एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है इस टाइप का, ये एफ है और ये एक्स है। ठीक है, ये
एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो इसमें देखो आप ये वाला एरिया कभी भी आउटपुट में नहीं आ रहा है, जहां जहां आप एक्स डालोगे कुछ ना कुछ, आप जब एक्स पुट करोगे तो कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव साइड ही मिलेगा आपको आउटपुट, कभी भी कुछ निगेटिव नहीं निकलेगा इसमें आउटपुट में, राइट। तो आप देखो आउटपुट जो है हमेशा इस फंक्शन का वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू कह दो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। बट हमारा जो कोडोमेन है वो आर है, इसका मतलब सीधे यहाँ जो आर लिखा हुआ है उसको हम आउटपुट या रेंज नहीं कह सकते। ये जो आउटपुट पॉसिबली निकल सकता है, जो जो आउटपुट हो सकता है एग्जैक्टली फंक्शन को सारे डोमेन रखने से, उसको रेंज बोलते हैं। पिछले क्लास में मैंने इसको डिटेल से बताया, उसको रेंज बोलते हैं। एग्जैक्ट जो आउटपुट्स निकलते हैं और वो जो सेट का पार्ट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो रेंज एट मैक्स कोडोमेन के बराबर हो सकता है, या तो उसका सब सबसेट होगा, कुछ सबसेट होगा। ओके, तो ये हम क्यों कोडोमेन और रेंज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लेके चले थे टॉपिक ऑन टू और इनटू का, राइट। तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं whenever for a function range becomes equal to codomain, then we say that function is on to function. Okay, when range not equal to codomain, मतलब एग्जैक्टली कोडोमेन के सारे एलिमेंट को दो सेट का बराबर होने का मतलब है एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है और एग्जैक्टली उतने ही है, ज्यादा कुछ कम नहीं है। ओके, कोडोमेन के बराबर नहीं है इसका जो सबसेट है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। ओके, ऑन टू नहीं है। तो रेंज और कोडोमेन से पता चलता है कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। यहाँ देखो आप क्या था, इस पार्टिकुलर केस में ये ऑन टू नहीं था, क्योंकि इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और कोडोमेन जो है कंप्लीट ऑल रियल नंबर्स हैं, राइट। तो ऐसे और भी एग्जांपल लेके आपको देखते हैं क्या क्या आता है। देखो जैसे आप एग्जांपल ले लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लो। तो इसमें क्या है, देखो साइन एक्स में एक बार आप देख लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का आप ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा बनता है आप देखो। सबसे बेस्ट तरीका होता है डोमेन रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और उसका ग्राफ बना लेना। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे। आई एम नॉट वेरी गुड विथ द ड्रॉइंग्स, आप समझ लो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये एफ है, एफ एक्स है और ये एक्स है, ये जीरो है, ये होता है। और आउटपुट मैक्सिमम कहाँ जाता है, वन तक जा सकता है और इधर निगेटिव साइड में -1 तक जा सकता है। तो एफ एक्स जो है यदि मैं इस तरह से डिफाइन करूँ कि साइन एक्स है और एफ जो है आर टू आर है, तो ये फंक्शन जो है इसका रेंज क्या है आप देखो, -1 to 1 है। ओके, ये इसका रेंज है। इसका कोडोमेन यदि मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, आर हो गया। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, राइट। और एग्जांपल लेते हैं एक आध फंक्शन जो कि ऑन टू सच में है। ये फंक्शन आप देखो सिंपल वाला फंक्शन 2x+3 ले लो, सिंपल सा फंक्शन। ओके, इसमें देखो और इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया, एफ आर टू आर है सब। फुल डेफिनेशन रहेगा तभी हमें ऑन टू इनटू का आइडिया लग पाएगा। ओके, अब देखो इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ये एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ओके, 2x+3 है, जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा और पॉजिटिव स्लोप है तो ये होगा, राइट। ये वो फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है 2x+3 है। एफ को y भी बोल सकते हैं।
तो y इक्वल टू एफ 2x+3। तो इसमें देखो क्या है, कोई भी सारा इनपुट डिफाइंड है, कहीं से भी इनपुट जा सकता है, तो डोमेन ठीक है। और सारे इनपुट के लिए माइनस इन्फिनिटी, देखो माइनस इन्फिनिटी इधर से लेकर प्लस इन्फिनिटी इधर तक सब कुछ आउटपुट आ रहा है। तो इसका रेंज क्या है, रेंज टोटल आ रहा है, सब कुछ है, राइट। अब कोडोमेन क्या है, वो भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, बोथ आर इक्वल, रेंज भी सेम है, कोडोमेन भी सेम है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, वो फंक्शन ऑन टू हो गया, समझ गया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कोई फंक्शन इनटू ऑन टू कब होता है या वन वन मेनी वन कब होता है। इसको प्रूव करने के लिए वैसा मैथमेटिकल वैसा फॉर्मूला नहीं है। इसको प्रूव करने का रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। जब आपको रेंज पता चल पाएगा तभी आप किसी फंक्शन के ऑन टू इनटू के बारे में बात कर पाएंगे। तो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, इसका अगला पार्ट जो आएगा, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसका हम रेंज निकालते कैसे हैं। जब तक हमें रेंज नहीं पता चलेगा हम कैसे कह सकते हैं बराबर है कि नहीं है, राइट। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे आगे के वीडियोज में। तो जब भी हम रेंज पता लगा लेते हैं, रेंज निकालने के वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं किसी भी फंक्शन का। जब हम रेंज पता लगा लेते हैं फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि वो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। यदि है बराबर तो वो ऑन टू हो जाएगा, और नहीं है बराबर तो इन टू हो जाएगा, राइट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू get some complicated function, and we will try to calculate its range and domain, and based on that we will try to correlate whether that function is onto into, or we will take some more complicated problem for mm, one one many one functions also. एक और चीज आप ध्यान रखना हमेशा, functions which are both one, let's write it like this, one one and on टू। पहले वाले में आपको बताया वन वन मेनी वन, और दूसरे वाले में आपको मैंने बताया ऑन टू इन टू। तो पहला का पहला और दूसरे का भी पहला कॉन्सेप्ट का वन वन भी है और ऑन टू है। तो इसको इंजेक्टिव बोला हमने ऊपर के वीडियो में, और इसको हमने बोला था सरजेक्टिव। जो भी फंक्शन ऑन टू होते हैं उनको सरजेक्टिव बोलते हैं, सरजेक्टिव। ओके, तो जो फंक्शन दोनों होते हैं, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों होते हैं, उन टाइप के फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वन वन भी था और ऑन टू भी था, दोनों एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ओके, जो फंक्शन इंजेक्टिव भी होता है सब्जेक्टिव भी होता है वो बाइजेक्टिव होता है। और इसका क्या यूज है आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, इनवर्स फंक्शन भी देखेंगे थोड़ा सा, वो भी पार्ट होता है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का। तो उसमें हम देखेंगे कि कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना बेहद जरूरी होता है। अदरवाइज वो, जब हम उसका इन्वर्स निकालने जाएंगे और यदि वो आइदर इंजेक्टिव नहीं है या सर्जेक्टिव नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन होता है उसको वायलेट कर देता है और वो फंक्शन ही नहीं रह जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे जैसे जैसे लेसन प्रोग्रेस करेगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं। आई होप you all got comfortable with this one one on two function। तो ये
this today's lecture was completely focused on how to understand the one-to-one and one-to function. So I took these examples to give you better picture about this concept. So yes, let's keep this short. Uh, so okay, happy learning. और एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब वीडियोस जो हैं कुछ कुछ डेमो वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर जो है वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा हमारे प्लेटफॉर्म mindspaneducation.com पे। आपको वहीं पे सिर्फ मिलेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑलरेडी mindspaneducation.com पे जाइए, इनरोल कीजिए इन सब टेस्ट सीरीज में, इन सब कोर्सेज में, और वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम और नोट्स वगैरह भी डालेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, हम नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे। सो ओके, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।